Hello, class. Yes, good morning. And yes, today we are going to switch to online class. Okay, so hope you all are fine. So let's start our poem. So today we are actually going to do poem that is the brook. Okay, and here the brook. This poem has been written by poet that is Alfred Lord Tennyson. Yes, Alfred Lord Tennyson, and he was born in 1809 in Lincolnshire, which is in England. So since from 40 years he was a poet, and he has written many poems like that, The Lady of Shalott, The Princess, The Palace of Art, and many more. So like this, the book also has been written by him, and today we are going to know about the poem. Okay, so let's start. Now basically the brook means what? The brook means actually it's a, hope you know very well about another word of a brook is a stream. Yes. एक छोटी सी जो नदी होती है, एक छोटी सी जो धारा होती है पानी की, एंड इन मराठी वी कॉल इट झरा, दैट इज़ व्हाट अ ब्रुक. तो स्ट्रीम को हम ब्रुक भी कहते हैं. सो ब्रुक यानी कि स्ट्रीम. ओके, स्ट्रीम यानी कि छोटी सी जो नदी. ओके, व्हेन द रेन, जब रेनी सीजन में यू नो वेरी वेल जो छोटी मोटी जो पानी, व्हेन द रेन फॉल्स एंड जो पानी की जो बहाव से छोटी सी जो एक स्ट्रीम होता है, यस, एक जो पतली जो एक रेस लाइन की तरफ फॉर्म होकर जो बहती रहती हैं, ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स, हम उसी को स्ट्रीम्स कहेंगे. व्हेन दी स्ट्रीम्स, जब ये ब्रुक एक साथ में, व्हेन द स्ट्रीम्स कम टुगेदर, ओके, तो ये क्या बन जाती है, ब्रुक बन जाती हैं. ओके, छोटी छोटी जो पतली पतली जो पानी की जो धारा एक साथ में जब मिलकर बहुत सारी जब स्ट्रीम्स आकर एक साथ में मिलती है तो एक ब्रुक बन जाती है, थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, दैट इज़ अ ब्रुक. तो अब देखेंगे ये जो ब्रुक के बारे में. एक्चुअली दिस पोएम द ब्रुक हैज़ बीन, ये ब्रुक एक्चुअली अपनी स्टोरी, अपनी जो जर्नी बता रही है. ओके, तो ये जो पोएम है ब्रुक, वो खुद ब्रुक ही कह रही है. ओके, एंड शी इज़ टेलिंग अबाउट हर जर्नी, किस तरीके से वो शुरू, हाउ शी गेट इमर्ज, वो किस तरीके से बनती है, देन हाउ शी फेस्ड, हाउ शी ट्रैवल थ्रू मैनी मैनी जो वेज से ट्रैवल होकर आती है, वो कहाँ कहाँ से जाती है, कहाँ से सफ़र करती है, ऑल इट्स एंड एवरी, वो किस तरीके से फील करती है, ऑल दिस शी इज़ गोइंग टू शेयर विथ अस इन थ्रू दिस पोएम. ओके, द ब्रुक. So now when we talk about the brook, actually it's related with the water. Yes, and you know very well that water is very much important in our life, most important. And if you see, water is an essential element for our survival, that we know very well. It's also one of our basic need. How the foods, basic जो shelters होते हैं, वैसे water उसी में include होता है basic need में. And without water we never even imagine to survive, to live. Fine. So water, in today's life, if you see, we use water in many ways. Yes, in household chores or in many, in also in different field also it has been used. And it means that water actually it's very plays an important role in our life. Okay, so water is an essential element for our survival. So look at these two pictures. They have given two pictures here. So in the first picture, if you see, an animal is drinking water, and in the other picture there is a plant, they also need water, yes or no? So in this water, it shows the dependence of the animals and plant, they depend on water. So isn't it, not only human beings but also plants and animals, they also need water. सो एज लिविंग, जितने भी जो लिविंग थिंग्स है, दे नीड वाटर. जैसे कि हम भी पानी पीते हैं, वैसे एनिमल्स दे ऑल्सो नीड वाटर टू, दे ऑल्सो बेथ, दे ऑल्सो ड्रिंक, फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल. सो प्लांट्स के लिए जैसे कि सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही उनकी ग्रोथ के लिए वाटर इज ऑल्सो necessary. So it means that they both are depend on water. Then later on they have asked here two questions, that is, how does scarcity of water affect animals and birds? So scarcity means पानी कमतरता. ओके, पानी की कमी के कारण how does scarcity of water affect animals and, but how it's going to be affect to animals and birds? Yes, it will affect or not? Yes, it will affect.
So what are the steps that we can take to preserve water? So if they are going to face many problems, but what will be the steps we have to, there are many steps to preserve water, yes or no? So since from your previous class you have keep on listening from your teachers that we have learnt about how to preserve water, how to save water in our in daily also while we are at home. Okay, how to save tap water. Okay, when we don't need, we have to just off the tap. So all these little small things, but it really matters a lot. Fine. While washing, while cleaning, we have to use a very yes, small quantity of water instead of using a large. And we have to collect rain water, उसको collect करना है, we have to use it in for the different way, for the other ways. Fine. So like this we have to preserve the water in this way. So but you are going to write all these points in your notebook, and later on the next question they have asked that water is getting contaminated due to various reasons. Now here what do you mean by contaminated? Contaminated यानी कि दूषित होना, खराब होना. So water का खराब होना उसके काफ़ी reasons हैं, due to various reasons. Yes, काफ़ी reasons से पानी खराब होते, contaminated होता है. List down a few of them. आपको उसके reasons लिखने हैं. How does it affect plants and animals? When the water gets contaminated, when the water gets खराब होने से, polluted, how does it affect plants and animals? Isn't it? It will affect plant as well as humans. Sorry, यहाँ पर humans है, humans. But I want to also add one more thing, that it also affect more to aquatic animals which are live in water. Yes. But so you are going to write it down how it get affect, how does it affect plants and humans. You are going to write down all these points in your notebooks. Fine. So let's start now. Here actually this poem is a really very lengthy poem. Okay, देखा जाए तो काफ़ी lengthy poem है. Fine. And see, काफ़ी lengthy poem है. We have to, so what I'm going to do today, we are going to have half of the poem. Okay, and half tomorrow we are going to continue. So let's start with the poem, that is a brook. So the poem is all about the journey of a brook. Okay, journey of a brook. I came from haunts of coot and hern, I make a sudden sally, and sparkle out among the fern to bicker down a valley. By 30 hills I hurry down, or slip between the ridges, by 20 thorps a little town, and half 100 bridges. Till last my filly farm I flow, to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. I chatter over stony ways, in little sharps and trebles, I bubble into eddying bays, I babble on the pebbles. With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set with willow, wheat and mallow. I chatter as I flow, to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. So till here we are going to do, okay, in today's class. So let's start. So I come from haunts of coot and hern. Haunts means actually, haunt यानी कि a places that a person frequents. That a person frequents यानी कि जहाँ पर अक्सर जाना होता है, ऐसा प्लेस. तो यहाँ पर I यानी कि I means brook. यहाँ पर आई कौन कह रहा है अपने बारे में? ब्रुक कह रहा है. सो आई कम फ्रॉम, मैं ऐसी जगह से आती हूँ, अक्सर वहाँ पर कूट और हन होते हैं. कूट और हन. सो कूट एक्चुअली इट्स अ वाटर बर्ड, अ टाइप ऑफ वाटर बर्ड विथ वाइट स्पॉट ऑन फोरहेड. उनके फोरहेड में एक वाइट स्पॉट होता है. और जो हन होते हैं, दे आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ वाटर बर्ड. तो जहाँ पर अक्सर कूट और हन आते हैं, वहीं से मैं आई कम फ्रॉम, वहीं से मैं स्टार्ट होती हूँ. आई मेक अ सडन सैली, तो वहाँ से मैं इमर्ज होना, सैली यानी कि छलांग लगाना, मैं वहाँ से इमर्ज होती हूँ. यस, ओके, इमर्ज होना. एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न टू बिकर डाउन अ वैली. सो ऑब्वियसली व्हेन यू सी दिस प्रॉपरली दिस पिक्चर, सो यहाँ पर फर्न यानी कि देयर आर मेनी प्लांट्स हैं, आसपास में कितने भी बहुत सारे प्लांट्स हैं. तो उसी के बीच में मैं स्पार्कल, पानी किस तरीके से थोड़े चमकते हैं, यस, स्पार्कल होते हैं. एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न टू बिकर डाउन अ वैली. ओके, तो मैं स्पार्कल होकर आती हूँ ये पूरे प्लांट्स के बीच, अमॉन्ग में. ओके, उन्हीं के बीच में से मैं एकदम स्पार्कल होकर बहती हूँ. टू बिकर डाउन अ वैली, टू बिकर डाउन अ वैली. व्हाट डू यू मीन बाय बिकर? बिकर यानी कि फ्लो डाउन विद अ लॉट ऑफ नॉइस. ओके, तो मैं वैली जो है वहाँ से मैं बिकर डाउन, बहती जाती हूँ आवाज़ करते करते. फाइन, दैट इज़ अ
The stanza is, by 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 thorps, a little town and half 100 bridges. By 30 hills I hurry down, यानी कि now she tells that, she says that when I flow, जब मैं फ्लो हो रही तो मैंने काफ़ी 30 हिल्स, इतने हिल्स को मैं हरी डाउन, आई जस्ट मैंने उनको क्रॉस किए हैं, और स्लिप बिटवीन द एजेस, स्लिप यानी कि यू नो वेरी वेल जो माउंटेन्स होते हैं, यस माउंटेन्स होते हैं कि जो चोटी होती है, येस और नो माउंटेन्स, अभी हिल्स के बारे में है, सो यहाँ पे जो हिल्स का स्लोपिंग एरियाज होता है, येस तो वहाँ से एकदम हरीली, एकदम स्लोपिंग एरियाज में स्लिपरी, काफ़ी फटाफट में हरीली स्लिप होते हुए आती हूँ. बाई 20 थॉप्स, 20 यानी कि थॉप्स एक्चुअली इट्स एन एंशियंट वर्ड, ये एंशियंट वर्ड है और इसको आज हम विलेज ये वर्ड से जाना जाता है. सो मैं 20 विलेजेस क्रॉस करके वहाँ पर एक छोटा टाउन भी आता है, एंड हाफ 100 ब्रिजेस, 100 का हाफ यानी कि कितने होते हैं 50, तो वो कितने ब्रिजेस क्रॉस किए 50 ब्रिजेस, यस सो इस तरीके से उनकी जर्नी है. टिल लास्ट माई फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर. सो टिल लास्ट यानी कि जहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम फिलिप्स है, ओके फिलिप, तो उनका जो एक फार्म आता है, खेत आती हैं. सो टिल लास्ट माई फिलिप्स फार्म आई फ्लो, तो वहाँ पर मैं बहकर आती, आई जस्ट कीप ऑन फ्लोइंग टिल इट्स हिज फार्म comes to join the brimming river so that I can easily go and join to the brimming river. The brimming का मतलब completely full to the top edge, यानी कि जो सरफेस, जो ऊपरी जो हिस्सा होता है रिवर का, यस पानी से भरा हुआ रहता है ना नदी, इफ यू सी द रिवर इट्स वेरी फुल ऑफ वाटर, सो द brook want to join that brimming river, okay, to join that brimming. So actually when you talk about this, when you say, अगर हम लोग ब्रुक के बारे में बात करें, ब्रुक यानी कि एज आई टोल्ड इट्स स्मॉल सी, छोटी सी जो स्ट्रीम होती है, यस एक ब्रुक होता है, काफ़ी छोटी नदी मानो, फाइन, बट नाउ उनका डेस्टिनेशन है, व्हाट्स द डेस्टिनेशन, उनका ये मंजिल है टू गो एंड टू जॉइन द बिग रिवर, यस और नो, टू गेट डेवलप, टू गेट इम्प्रूव्ड मोर, यस जैसे कि आज हम एकदम स्मॉल है, कल जाकर हम लोग काफ़ी बड़े कुछ एक बड़ा ड्रीम देखते हैं, वैसे ही इन्हीं का वैसा ड्रीम है कि आई एम अ वेरी स्मॉल, यानी कि मैं ब्रुक हो, तो मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे काफ़ी एक बड़ा नदी में जाकर जॉइंट होना है. सो दैट्स व्हाट इट्स डेस्टिनेशन इज. सो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर रिवर. सो नाउ यहाँ ब्रुक जो है, शी इज़ कंपेयरिंग विद ह्यूमन बींग्स, यस वो ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर कर रही है. सो मैन मे कम, तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ओके तो वो कैसे हैं, दे बॉर्न, वो बॉर्न होते हैं, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स के बाद दे गेट डाई, यस वो डाई होकर चले जाते हैं. सो द मैन मे कम यानी कि वो आते हैं, एंड मैन मे गो वो चले जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर रिवर, बट मैं ऐसी हूँ कि मैं हमेशा के लिए, ओके आई विल बी फॉर एवर, ओके मैं कभी अक्सर डिसअपियर नहीं हो जाऊंगी, कभी चली नहीं जाऊंगी, आई विल नेवर डाई, बिकॉज मैं हमेशा बहती हुई नजर आऊंगी, ओके सो आई विल गो ऑन फॉर एवर. I chatter over stony ways and in little sharps and trebles. I chatter यानी कि बातें करना. So chatter, there are many words जो कि actually जो कि हम लोग बोलने के लिए यूज़ करते हैं, to speak. तो chatter यानी कि जब अभी talk बोलते हैं ना, chatter कितना chatter करती हूँ, keep on just talkative. So I chatter over stony ways. तो when she flow, जब ब्रुक फ्लो करती है, stony ways पत्थर यानी कि obviously उन्हीं के जो वे में देर आर मैनी स्टोन्स, काफ़ी ऑब्वियसली ना लैंड की यहाँ से फ्लो कराती है, तो उनको काफ़ी स्टोनी वे से वो बातें करते करते शी कीप्स ऑन फ्लोइंग इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स. एंड व्हाट हैपन, जब वहाँ पर कभी कभी स्मॉल के साथ काफ़ी बिग रॉक्स होते हैं, बिग स्टोन्स होते हैं, तो काफ़ी उनकी जो कुछ जो स्टोन्स होते हैं काफ़ी शार्प्स होते हैं, यस ओके शार्प्स होते हैं. एंड ट्रेबल्स यानी कि हाई पिच्ड वॉइस, इन योर वर्ड बडी, हाई पिच्ड वॉइस, इसको हम ट्रेबल्स कहेंगे. सो ओके तो जब स्टोनी वे से बातें करती हुई आती है, तो कभी अचानक से बड़े पत्थर से टकराने के बाद वो पानी का जो आवाज़ होता है, हैव यू हर्ड साउंड ऑफ वाटर, ओके व्हेन शी flow from a big rock and she flowed down, at that time there is एक आवाज़ आती है, एक हाई पिच्ड वॉइस होता है, एक जोरों की आवाज़, अलग सा पानी का जो आवाज़ होता है, फाइन, दैट इज़ नोन एज अ ट्रेबल्स.
I bubble into a edding bay. So later on when she come into a flat surface, जब वो पानी का नीचे गिर के एक फ्लैट सर्फेस में आना, तो इट कीप्स ऑन राउंड. ओके, एक सर्कुलर मूवमेंट होता है, उसको हम एडिंग कहेंगे. यस, वहाँ से फ्लो होकर, इफ़ यू सी दिस, फ्लो होकर यहाँ पर आना, तो कहीं एक बीच हो, इफ़ यू सी न between, you will find that the water gets bubbling यानी कि बबल होना, यानी कि moving in a circular movement, that is a adding. I babble on the pebble. So babble again, it's a speak in a way that is difficult to understand. So she keeps on, तो फ्लो होती है तो she वो चैटर करती है, बातें करती है, और वो पेबल्स यानी कि जो स्मॉल छोटे पत्थरों को हम पेबल्स कहेंगे. सो पेबल्स के साथ अगेन शी कीप्स ऑन बैबलिंग यानी टू टॉक इन अ स्पीक इन अ वे. ओके, शी कीप्स ऑन keep on talking. So like this the brook is fine. Then the letter, with many a curve my banks are I fret. Okay, my many a curve. So when the brook, when she keeps on flowing, yes, because obviously the roads, whatever the streets जो होते हैं, जो उनके जो ways होते हैं, it's not that much very straight. Okay, कहीं ना कहीं एक curve होता है. ओके, जहाँ पर उनको मुड़ना पड़ता है. येस, सो विथ मैनी अ कर्व, उनको काफ़ी, बिकॉज काफ़ी इतना बड़ा रास्ता है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सॉ दैट वो 30 हिल्स, 20 थॉप्स और एक लिटिल टाउन और 50 ब्रिजेस क्रॉस करे, तो ऑब्वियसली रास्ता तो काफ़ी कर्व यानी कि आधे टेढ़े श्योरली रहेंगे. सो विथ मैनी अ कर्व, तो जब भी वो कर्व करती है किनारों पे, माई बैंक्स आई फ्रेट यानी कि ऑब्वियसली शी फील, थोड़ा सा उनको हर्ट होता है, थोड़ी तकलीफ होती है. ओके, सो बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो, मैनी अ फील्ड यानी कि, तो ऑब्वियसली जब वो कभी वो खेतों की एकदम साइड के किनारों से गुजरती हैं, बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो, एक तो ऐसे फील्ड होते हैं ऑब्वियसली जहाँ पर कल्टिवेट करते हैं फार्मर्स, और फैलो मतलब इट्स अ प्लॉट एंड लेफ्ट फार्म लैंड विदाउट बीइंग सोन. ओके, जैसे कि बंजर धरती, उसी को फैलो कहेंगे हम. तो कभी फील्ड भी मिलते हैं, कभी फैलो भी रहते हैं. ओके, एंड मैनी अ फेरी फोरलैंड सेट विद अ विलो वीट एंड मैलो. ओके, तो फोरलैंड सेट यानी कि फोरलैंड के पीस ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड्स विद इनटू द सी. ओके, यानी कि जो लैंड है वो सी के अंदर एक्सटेंड हुए हैं, दैट इज़ अ फोरलैंड सेट. सो इन, अगर इस तरीके से इफ़ यू सी सच काइंड ऑफ जो फोरलैंड सेट होता है, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. येस, वेर यू विल फाइंड दैट विलो वीड होते हैं. ओके, विलो वीड इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ श्रब यू विल फाइंड इन, ऑब्वियसली जो पानी ऐसे इलाकों में तुमको इस काइंड ऑफ के श्रब्स मिलेंगे. ओके, विलो वीड एंड मैलो इज ऑल्सो वन प्लांट है विथ हेरी स्ट्रिम्स होते हैं, स्टेम्स एंड लीव्स. ओके, जिनके पिंक वाइट और पर्पल फ्लावर्स होते हैं, मैलो. सो सच काइंड ऑफ ट्रीज यू विल फाइंड, श्रब्स एंड ट्रीज यू विल फाइंड, प्लांट्स मिलेंगे इन अ फोरलैंड, जो कि लैंड है जो कि विच हैज़ बीन इन टू द एक्सटेंड इन टू द सी. सो इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. सो दैट अगेन फील्ड की तरह, बंजर धरती से पास आउट होकर लेकिन फोरलैंड की तरफ भी जाती है, जहाँ पर विलो वीट एंड मैलो होते हैं. आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर. सो वो कीप्स ऑन चैटरिंग, वो बातें करते, शी कीप्स ऑन चैटरिंग व्हेन शी, एज सून एज शी कीप्स ऑन फ्लोइंग, वो बातें करते हुए ही आती हैं. शी कीप्स ऑन चैटरिंग विद द स्टोन्स, विद द पेबल्स, विद द एयर, विद देयर एवरीबडी टू जॉइन द, बिकॉज शी वांट, उनका डेस्टिनेशन क्या है, एज आई टोल्ड यू, शी वांट टू जॉइन द रिवर. यस, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर. ओके, so hope so till here we are going to stop today. Fine, and I want you all please learn this poem again. Okay, till where I taught. Thank you all.